हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, a topic which is much discussed. Many people are interested in knowing how to select stocks, companies for long term investment. Okay. There are a number of parameters. Obviously, it is not that you will go through some of the financial parameters and you will be in a position to select a company. That's not the case. That's never been the case. Financial parameters is one, I would say, a limited part of this selection criteria. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको किसी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, कोई स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए पहले एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए। अगर आपके पास वो बिजनेस माइंडसेट है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी बिजनेसेस। बिजनेस माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकती है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल देख सकती है। यही बिजनेस माइंडसेट है। And the other parameters which we always discuss about, that is a part of this analysis. That is a part of analysis. But above all, आपको वो mindset होना बहुत जरूरी है। Now, how to develop this sort of mindset is a day-to-day activity. It's a long-term activity. In itself, developing a business mindset is a long-term process. Long term as in definitely it will not happen in a 15 days or a month. You need to have consistent reading, consistent learning. अगर कोई एक लिमिटेड थियोरी अगर आपने पढ़ लिया और आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करने आ गए तो बात ही खत्म हो गया। इतना आसान तो है नहीं। चार्ली मंगर हैज categorically pointed out that those who think that investing is easy, they are fools. So obviously it is not easy. It seems very easy right now because of this too many information technology tools, internet, and of course internet का एक फायदा है, but provided you spend a quality time on internet in learning about the businesses. Okay, narrowing down to parameters, let's discuss about financial parameters first, जो कि obviously we look always for these parameters. पहला important parameter है growth in sales, growth in income. ये growth आपका जो भी आप कंपनी एनालाइज कर रहे हो, बिजनेस एनालाइज कर रहे हो, उसका अगर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंट नहीं है 5-7 सालों में पिछले, देन इट मेक्स मतलब ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर ये नहीं है तो थोड़ा एक पहले ही रिजर्वेशन क्रिएट हो जाता है कि वेदर टू गो फॉर दिस कंपनी और नॉट, क्योंकि कंसिस्टेंट सेल्स यही एक चीज है जो आपको बाकी चीजें करने को अलाउ करता है। For example, if you don't have growth in sales, how will you have the growth in profit, bottom line? So obviously, अगर profit में भी growth नहीं है, but sales are growing, revenue is growing consistently, then also that is a considerable, company. जैसे कि startups है, काफी अभी recent IPOs है, जो कि new ventures के, उसमें profit loss making companies है, still they have been valued at thousands of crores. Because of this phenomena of rapidly growing sales. Okay, one parameter. Second important parameter is in which industry the company is functioning. Which industry? ये nature of the business. Mining है, steel manufacturing है, IT है, real estate है, automotive है, which industry it is active. Okay, कौन से इंडस्ट्री में है? Because from industry to industry these parameters change. Retail है, depends. So
एक बार आपका इंडस्ट्री आइडेंटिफाई हो गया, देन वी कैन चूज द सेट ऑफ पैरामीटर्स, या जो लिमिट्स है वो पैरामीटर्स के वो सेट हो जाते हैं। पहले तो सेल्स में आपको एक ग्रोथ देखना जरूरी है कि ये ग्रोइंग है क्या कंपनी। अगर ग्रोइंग नहीं है तो फिर ओके, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। प्राइमा फेसी, इट्स वेरी प्राइमरी simple logic I am telling you. There are companies which haven't grown for number of years but suddenly grown in a dramatic way. So again, subjective. First, sales growth. Second is the type of business. Third, you have to look for is profit margin. Profit margin कितना है, margin of profit कितना है। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन के बाद ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ओवर द पास्ट 5 to 7 years। ये होने के बाद यू हैव टू लुक फॉर डेट लेवल्स। डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। अगेन इट वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अभी आप कहोगे कि बैंकिंग का डेट टू इक्विटी रेशियो 5 है, 4 है, सो दैट इज वेरी ऑब्वियस इन बैंकिंग इंडस्ट्री to have a debt to equity ratio of 4-5, okay, so it's obvious, but इतना बाकी businesses के लिए abnormal ratio है। so it depends। अगर कोई capital intensive company है, capital goods का company है, तो अगर थोड़ा debt है तो it's considerable। कोई infrastructure segment में then also certain debt level is considerable। ऐसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होता है। कुछ इंडस्ट्रीज में सर्टेन लेवल ऑफ डेट इज परमिसेबल, बट वेयर एज इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, उसमें डेट लेवल रहना मतलब वो एक क्वेश्चनेबल केस हो जाता है। मोस्टली हार्डली एनी आईटी कंपनी हैज गुड लेवल ऑफ डेट, नो, मोस्टली आईटी कंपनीज हैव जीरो लेवल ऑफ डेट मोस्टली। सो accordingly we have to decide which is the comfort level for each business segment। so these are the broad parameters। ये broad parameter है, यही, इसके अलावा आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं ऑन अ प्राइमरी बेसिस। ये जो मैंने पैरामीटर्स बताए, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन इनकम, बिजनेस सेगमेंट कौन सा है, सेकेंडली नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, थर्ड पॉइंट डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर इतना आपने देख लिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वेदर द कंपनी इज फाइनेंशियली इन अ गुड पोजीशन और नॉट। फाइनेंशियली, फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पैरामीटर्स। फाइनेंशियल पैरामीटर्स के अलावा भी काफी पैरामीटर्स है, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स, एंड विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल पैरामीटर्स। ओके, प्राइमरी आप ये पैरामीटर्स को देखना चाहिए किसी भी कंपनी में। और यस, प्लीज कीप इन माइंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो पैरामीटर्स वेरी होते हैं। एक इंडस्ट्री के आप मेजर कंपनीज को देख के वो जज कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज ये इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है फॉर दिस ऑल दिस पैरामीटर्स। सेल्स ग्रोथ कितना है, पेंट इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज कितना सेल्स ग्रोथ है, वो यू कैन सी, एंड अकॉर्डिंगली यू एक्सपेक्ट अ कंपनी, पेंट कंपनी टू बी ग्रोइंग एट ऑन एन एवरेज दिस ऑप्टिमल लेवल। तो ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इसके बाद शुरू होता है एक्चुअल टास्क, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कंपनी फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये ऐसे पैरामीटर अगर आपने देखे तो सारे कंपनीज के मोर और लेस आपको सही दिखेंगे। शायद ही कोई कंपनी होगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी के तो पैरामीटर्स कंट्रोल में ही होते हैं, अनलेस एंड अनटिल सम लाइक पीएसयू कंपनी नहीं है तो ही उसके, मोस्टली की पीएसयू सेक्टर के कंपनीज के ये पैरामीटर थोड़े डिसएडवांटेजेस आपको दिखेंगे because of the obvious reason, lack of quality management. That obvious reason is lack of quality management. यही दूसरा पॉइंट है। I mean, second broad parameter is how to identify whether the company is being managed well. This is very subjective topic, subjective task.
मैनेजमेंट कंपनी का कॉम्पिटिटिव है या नहीं, ये अगर आपको मालूम पड़ता है, देन यू हैव क्रैक्ड द इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई कंपनी वेल मैनेज है, ऑब्वियसली उसके पैरामीटर्स अच्छे होंगे, अभी नहीं है तो भी वो अच्छे होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर वो वेल मैनेज नहीं है, तो अगर अभी भी उसके पैरामीटर्स, फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे हैं, उसके बावजूद आने वाले सालों में उसके पैरामीटर्स यू कुड सी इट गोइंग डाउन लाइक एनीथिंग। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम जेट एयरवेज टू अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कंपनीज। तो ये सब एग्जांपल्स से द कंपनीज विच आर नॉट मैनेज वेल। बाकी भी एग्जांपल्स है, I won't go much into this example part, but highlight मैंने कर दी है। Now, how to identify whether the company is managed well or not? Very broad, subjective and detailed topic। यही वो जो मैंने आपको कहा था, business mindset, ये यहाँ पे पिक्चर में आता है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स के ऊपर कितने वीडियो है, कितने ट्यूटोरियल्स है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये है वो है। मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में ज्यादा यहाँ पे डिस्कस भी नहीं किया। ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द कंसिडरेशन, बट इफ यू सी हेल्दी सेल्स ग्रोथ, हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ, देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ओके, बट ठीक है, अभी ये सब पैरामीटर्स अगर आप पढ़े, आपको मोस्टली जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर दे आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको ये बेसिक चीजें पता है, आपको ये पता है, आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है। वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक और नॉट, ये अभी सीधा एक ही सवाल पे आके एक ही सवाल आपको आंसर करना है, वेदर यू कैन आइडेंटिफाई द क्वालिटी कंपनीज, सिंपल। और आप कर सकते हो तो आपने खरीदा हुआ है, आप खुद का ही परफॉर्मेंस ट्रैक करो। और एक बात, 1, 2, 3 महीने में वो परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं होता है, 1 साल रुको, 6 महीने रुको, 1, 2 साल में आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स। 2-3 महीने में मालूम नहीं पड़ता है कुछ भी, 2-3 महीने में पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे फंक्शन होता है, बेसिक चीज है। सो फॉरगेट अबाउट दैट। इफ यू आर like, if you think that you will read some book, or you will watch some video, or you will do some course, and from next day you will be able to identify fundamentally strong companies in the market, not possible. It's simply not possible. And moreover, अगर आपने कितने भी ये करने के बाद भी, it's about the continuous learning process, continuously business environment जो है वो चेंज होते रहता है, एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी मोमेंट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, एंड स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ इज लाइक अ impossible task. It's really difficult to study the business environment on a continuous basis. Even after doing that, even if you do this successfully, what would be the impact of the changing business environment on your respective companies? That is a next task. So daily basis, weekly basis या upcoming इवेंट्स का आपके कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जज करना कंटिन्यूसली ओवर द मंथ्स, ओवर द इयर्स इज अ चैलेंजिंग टास्क। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा, पैरामीटर्स आप स्टडी करो, वो तो कोई भी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकता है, नॉट अ बिग डील। 10th स्टैंडर्ड का भी बच्चा अगर उसको ठीक से समझा जाए तो वो भी कर लेगा। व्हाट इज देयर, इज नॉट अ बिग डील। बट identifying a business potential is about intuition, is about looking into the future, judging the business environment, and sensing the next big trend in the industry, in the society, in the market. ट्रेंड क्या है,
और वो ट्रेंड में कौन से कंपनी सक्सेसफुल होंगे। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो अभी क्या करें? कर लिया, नेक्स्ट ट्रेंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन से स्टॉक खरीदे जाए, उसके ऊपर भी वीडियोस बने। एज ऑफ नाउ यू कांट सिंपली डिसाइड विच स्टॉक्स टू बाय। 100 स्टॉक्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, टायर से लेके कार एक्सेसरी के छोटे से पार्ट तक कंपनीज लिस्टेड है। मदरसन सुमी से लेके टाटा मोटर्स तक कितने सारे कंपनीज है जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इंक्लूडिंग द पेंट सेगमेंट। पेंट भी तो लगता है कार को। क्या करोगे? सब स्टॉक खरीद लोगे सब कंपनी के। डाइवर्सिफिकेशन हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। जितना डाइवर्सिफाई ज्यादा करोगे, आई मीन डाइवर्सिफिकेशन हैज इट्स रियल गुड एडवांटेजेस प्रोवाइडेड इट इज डन इन अ मीनिंगफुल वे। अदरवाइज टू मच डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू नथिंग। इससे अच्छा तो आप कोई इंडेक्स खरीद लो, इंडेक्स का कोई एक फंड खरीद लो, ETF। सो हियर कम्स द चैलेंजिंग टास्क, हाउ टू आइडेंटिफाई अ कंपनी। उसके लिए आपको वो कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल पैरामीटर तो है ही, पर बिजनेस आपको, कोर बिजनेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है। तो अभी हम लोग मैनेजमेंट से 1-on-1 तो बात कर नहीं सकते, ऑब्वियसली। आपको मैनेजमेंट कैसा है आइडेंटिफाई करना है तो आपको उनको जाके मिलना होगा, एज सिंपल एज दैट। यू नीड टू टॉक टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी and their ideas about the future of their own business. Then only you will be in a position to judge the management. अभी ये आप तो कर नहीं सकते, छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। तो you have to look at the institutional activity. ऐसा नहीं है कि यार हमेशा इंस्टीट्यूशंस करेक्ट ही होते, नो, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। बट आपको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के ऊपर भी नजर रखना होगा। कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट 1-on-1 डिस्कशन होता है और उनको बेटर जजमेंट होता है बिजनेस के बारे में कि आगे ये लोग कैसे प्रोसीड करने वाले। ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट दैट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट के जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट होता ही है। इसलिए फाइनेंशियल पैरामीटर्स अच्छे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट अच्छा है, ये भी गलत है। क्योंकि जो कंपनीज जो फेल हुए वो क्या फाइनेंशियली नॉन परफॉर्मिंग नहीं थे, वो परफॉर्मिंग कंपनीज ही फेल हुए। अचानक से वन डे यू विल फाइंड दैट कंपनी हैज सम बिग कॉर्पोरेट इशू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इशू अचानक से सरफेस पे आ जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड पैरामीटर्स। और एक बात, आपको कंटिन्यूस लर्निंग through newspaper, business magazines, business management books, in particularly management as a discipline, अगर आप स्टडी करते हो, doesn't take much time of yours to study the business management। कोई भी अच्छे business management आप बुक्स पढ़ो, it will definitely help you। YouTube वीडियोस देखना अच्छा ही है, YouTube वीडियो से ज्ञान बढ़ता ही है, बट सिर्फ YouTube वीडियो के ऊपर आप रिलाई नहीं रह सकते हो। इवन दो आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो ऑन ए YouTube, आई एम कोटिंग दिस दैट यू रियली कांट रिलाई ऑन द YouTube ज्ञान फॉर योर फंडामेंटल्स। डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री थिंग, बट आपका कोर जो है वो आपके खुद के पास ही होना चाहिए। खुद के नोट्स, खुद का ऑब्जर्वेशन आपको आपके डायरी में लिख के रखना चाहिए। ओवर द इयर्स, ओवर द टाइम आपको वही इवेल्युएट करना चाहिए। यही एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पहचान है, दैट यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी पिक्यूलर
about what you are doing. YouTube वीडियो देखा, स्क्रॉल डाउन कर लिया, कोई और वीडियो देखा, भूल गए. नो, इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी. इट हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड. इट्स नॉट एन अनऑर्गेनाइज. ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है कि आपने देखा, सुना, खरीद लिया. ये तो ठीक है, मतलब I mean, if you are purchasing some good company, obviously it's fine. But अगर आपने कहे सुन के कोई ऐसा कंपनी खरीद लिया जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, या कोई लार्ज कैप भी खरीद लिया, बाद में चला नहीं, मालूम पड़ा 5-6 साल के बाद देखा कुछ नॉमिनल रिटर्न्स दिए, that mostly that happens. That's what happens. तो आपको लर्निंग अगर करना है, you have to develop a mindset, business mindset, and to do that you have to take efforts on your own, discipline efforts, books, newspapers, your self-discipline matters. YouTube videos, digital content it will definitely help you. It's a big asset that you are able to access such content so easily. Big positive. But और एक बात है, एक युवल नोआ हरारी सेपियंस के ऑथर है, सेपियन बुक के, काफी फेमस बुक, इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक अक्रॉस द वर्ल्ड. बट उनका और एक बुक आया है, आई थिंक इन 2 years ago it was launched, 21 lessons for 21st century. Yuval Noah Harari, same author, the author of the Sapiens, same author has written this book, 21 lessons for 21st century. उसमें उन्हें 21st century में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस किया है. फ्यूचर कैसा होगा उसके ऊपर डिस्कस किया है, क्या चैलेंजेस है उसमें. बट उन्होंने एक बात बहुत हाईलाइट किया है. द फर्स्ट लाइन ऑफ दैट बुक सेज that in this world deluged by irrelevant information, in this world deluged by irrelevant information, clarity is power. So आज अगर आपके पास क्लैरिटी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, then you are powerful. I mean, this sentence really resonated in my mind. It's very deeply impressing. The intellect of the author is very, deep, and it's so relevant कि आज इतना सारा इंफॉर्मेशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज के बारे में, that you really can't make out which is a good company और किसका एडवाइस आप सुने, किसको अनदेखा करे. You really don't know. इतना सारा इंफॉर्मेशन है. So it's a big challenge. It's the next challenge. How to get out of this confusion? Too much information is also a problem, and it's turning out to be a big problem. कि आपको कुछ पता ही नहीं है. Ultimately, even after accessing so much information, you can't make any decision because you are confused. Because you are confused fundamentally. क्या किया जाए? No clarity. So ये प्रॉब्लम को अगर ओवरकम करना है तो आपको खुद को डिसिप्लिन बनना पड़ेगा. As I said, you need to develop a business mindset. Without that business mindset, it is really not possible to develop acumen to choose quality stocks for a long term. I hope this video was useful to you. मैंने कुछ ज़्यादा टेक्निकली डिस्कस नहीं किया. That might be one of your complaint, but जो मुझे सच में लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया. If you have anything to, from my side, if you want me to share something or make videos on a particular topic, you can write that in a comment box. शेयर कीजिए वीडियो जिनको आपको लगता है कि उनको इसका हेल्प होगा, उनके साथ कीजिए. सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. और जो YouTube चैनल है ये द ब्रेक इवन पॉइंट, उसके ऊपर भी बाकी वीडियोस है जो मैंने डिस्कस किया है.
इसके कहीं ना कहीं मैंने मेरे पूरे एनालिसिस में ये कंपनीज के ये पॉइंट्स टच किए। हाँ, ब्रॉड कैसे एनालाइज कर सकते हैं आप किसी कंपनी को, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको यही वीडियोस में मिलेगा। हाउ टू गो अबाउट चूजिंग अ कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, उसका ये वीडियोस जो मैं कर रहा हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस ही है फॉर अ लॉन्ग टर्म सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। Thank you everyone for watching the video.